نکاح سے ایک دن پہلے مہندی کی خوشبو پر درویش جن عاشق ہو کر اپنی دنیا میں لے گیا اور سونے چاندی کا لباس پہنا کر مجھ سے نکاح۔ میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 30 برس ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ ابا کسی کے گھر چوکیداری کرتے تھے اور اماں گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں۔ ہم 2 بہنیں ہی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ جس وقت ہماری پیدائش ہوئی تو ہسپتال میں ایک بزرگ خاتون جس نے میرا ننھا سا ہاتھ دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ تم لوگوں میں سے نہیں ہے، اس کی اونچائی کسی اور دنیا تک جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ماں باپ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں، مگر اس عورت نے خاموشی اختیار کی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اماں نے اس عورت کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ عورت کہیں نہیں ملی۔ بچپن سے ہی اماں مجھے لے کر بہت پریشان رہتی تھی۔ میں بچپن سے ہی کافی بیمار رہا کرتی تھی۔ اماں ہر وقت مجھے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی کسی ہسپتال تو کبھی کسی حکیم کے پاس لے کر پھرتی رہتی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں کسی دن صحت یاب ہوں۔ زیادہ تر تو مجھے بیماری کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اماں کو اتنا پریشان کسی اور اولاد نے نہیں کیا تھا جتنا وہ میری وجہ سے پریشان ہوئی تھی۔ میں 10 سال کی ہوئی تو میرے اور میری بہن کے چہرے میں صرف اتنا فرق تھا کہ میری آنکھوں کے پاس ایک چھوٹا سا پیدائشی نشان تھا اور میری جڑواں بہن کی آنکھ بالکل صاف تھی۔ باقی ہم دونوں کی عادات، شکل و صورت، رنگ روپ سب کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ دیکھنے والا ہم دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگوں کو گاؤں کے لوگ اسی نشانی سے پہچانتے تھے۔ میں بچپن سے بیمار تو رہتی ہی تھی مگر میں بہت چلبلی سی، شرارتی سی تھی۔ پورے گاؤں کے ناک میں دم کر رکھا تھا اور اکثر میری وجہ سے میری جڑواں بہن کو سب سے ڈانٹ پڑ جاتی۔ شرارت میں کرتی تھی اور پکڑی وہ جاتی تھی۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، کیونکہ تب میں اتنی معصوم سی شکل بنا لیا کرتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک برگد کا درخت تھا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ کہا کرتے کہ یہاں سایہ ہے۔ جوان بچیوں کا وہاں جانا سختی سے منع تھا۔ جو لڑکیاں بھی وہاں جاتی وہ گھر والوں سے چھپ چھپا کر ہی جاتی تھیں، اور جس کے گھر والے لڑکی کو وہاں پر دیکھ لیتے تو اس لڑکی کی شامت آ جایا کرتی تھی۔ اس کے گھر والے اسے بہت زیادہ ڈانٹتے تھے۔ اس درخت سے کچھ دور ایک ندی بہتی تھی جس کا پانی شیشے کی طرح صاف شفاف تھا۔ میں اکثر اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اس برگد کے درخت اور اس ندی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتی اور اس میں اتنا کھو جاتی کہ میرے پاس کوئی جو مرضی بولتا ہو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ میری نظریں اسی کا طواف کرتی رہتی تھی۔ میں وہاں پر جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ میری 3 سہیلیاں بھی تھیں جو گاؤں میں ہی ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھیں۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو وہ توبہ توبہ کرنے لگتی اور مجھے ڈانٹنے لگتی کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ ان میں سے میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا چھوٹی عمر میں ہی نکاح کر دیا جاتا تھا۔ گاؤں پر تو جیسے کسی کی بد دعا تھی۔ جب بھی کسی لڑکی کا نکاح اسی گاؤں میں ہوتا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ گاؤں کے لڑکیوں کی شادی دوسرے گاؤں میں کی جاتی تھی۔ اب تو ہمیں اپنی سہیلی کے لیے فکر ہونے لگی تھی کیونکہ اس کی شادی اسی گاؤں میں ہو رہی تھی۔ اسے بڑے بوڑھوں نے بہت سمجھایا کہ یہ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کا ہی اصرار تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ تب مجبوراً ان لوگوں کے گھر والوں کو یہ بات ماننی پڑی۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ آج سے پہلے اس گاؤں کی جس لڑکی کی بھی اسی گاؤں میں شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اب تو خدا سے نیک دعاؤں کی درخواست تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ ایک صبح ہم اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔
घर चूंकि इतना बड़ा नहीं था, तभी हम सब सहन में निकल आए और अब्बा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने ही मेरी सहेली की अम्मा खड़ी थीं, जो मुसलसल रोए जा रही थी। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। आंटी को ऐसे रोता हुआ देखकर मेरी अम्मा आगे बढ़ी और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। मेरे पांव तले तो ज़मीन निकल गई जब आंटी ने बताया कि मेरी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने उसी बरगद के पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसी रोज़ उसका निकाह था और उसी रोज़ उसने जान क्यों दे दी। वो तो बहुत खुश थी। वो तो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी और अब वो अचानक से खुदकुशी क्यों करेगी। मेरी सोच का मरकज मेरी सहेली की मौत से ज़्यादा बरगद का दरख्त था। मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। मैं तो आंखें फाड़े बेयकीनी से अपनी सहेली की अम्मा की तरफ देखने लगी। मेरी सहेली की मौत के बाद से पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। हर तरफ बरगद के दरख्त को लेकर चर्चे हो रहे थे। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। अब तो जैसे मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैं उस दरख्त के पास जाकर देखना चाहती थी, उसको करीब से जाकर छूना चाहती थी। ना सिर्फ दरख्त को बल्कि उसके पास बहती नदी को भी। बहुत पुरकशिश थी वो नदी। मेरा हर वक्त ध्यान उसी की तरफ रहता था। मैं जब अपनी ख्वाहिश का इजहार अपनी सहेलियों के साथ करती तो ये देखकर अब तो मेरी सहेलियां भी मुझसे डरने लगी थी। एक रोज़ मैं घर में अकेली थी, बुखार में तप रही थी। अम्मा पड़ोस में गई हुई थी और अब्बा काम पर मेरी जुड़वा बहन खाला के घर गई हुई थी। बुखार की वजह से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मुझे ये बात महसूस हुई कि मैं घर में अकेली हूँ, आज मौका अच्छा है, आज मैं बरगद की तरफ जा सकती हूँ, तो दिल किया उसी तरफ चल पड़ूं। पहले कुछ देर सोचती रही और फिर अपनी सोच पर आमीन कहते उस बरगद के दरख्त के पास चली गई। मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। बरगद के दरख्त के पीछे बहती नदी तो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। इतनी खूबसूरत नदी देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर मैंने कई घंटे उस नदी को बड़े गौर से देखा। उसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज़ होती रही। उसको मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। मुझे तैरना आता था। मेरा दिल किया कि मैं पानी में तैरूं। मैंने आस पास देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। इस तरफ तो कोई इंसान आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपने दिल के कहने पर अमल किया और उस चमकती साफ शफाफ नदी में गोता लगा दिया। नदी का पानी ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था। मुनासिब पानी का दर्जा हरारत मेरे बुखार में तपते वजूद को सुकून पहुंचा रहा था। पूरे तरीके से भीगने के बाद मैं दरख्त के नीचे आकर बैठ गई, जहां बहुत सी लंबी लंबी जड़ें लटक रही थी। ये मंजर मुझे बेहद मुतासिर कर रहा था। अभी मैं इधर उधर के नज़ारे से लुत्फानंदोज़ हो रही थी कि नदी की दूसरी तरफ, जहां बहुत गहरा जंगल था, वहां किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। मेरी हैरत की इंतहा न रही। बच्चे की आवाज़ जंगल से सुनकर मैंने सोचा कि आज तक मैंने ये तो कभी नहीं सुना कि इस जंगल में कोई आबादी भी है। हो सकता है वो बच्चा अकेला हो या रास्ता भूल कर आ गया हो। मुझे उसकी मदद को ज़रूर जाना चाहिए। मैं नदी पार करके जंगल की तरफ गई। पहले तो कुछ खौफ महसूस हुआ, फिर मैंने अपने खौफ पर काबू पाया। फिर दिल बड़ा करके जंगल के अंदर चली गई। बच्चे की आवाज़ें जिस तरफ से आ रही थी, मैं खामोशी से चलती हुई उसी तरफ चलती गई। बच्चे की आवाज़ का पीछा करने लगी। काफ़ी देर सफ़र तय करके सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, जहां एक बच्चा बड़े से दरख्त के साथ लटका हुआ था। ये मंजर देखकर मेरे वजूद सलसलों की जद में आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को कैसे बचाऊं। मैंने पहले इधर उधर ध्यान दिया कि कुछ मिल जाए जिसकी मदद से मैं वो बच्चा नीचे उतार सकूं, लेकिन घने जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ऊंचाई से हमेशा डर लगता था, लेकिन बच्चे का रोना मेरे दिल को ची रहा था। तभी मैं अल्लाह का नाम लेती दरख्त पर चढ़ गई।
میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب درخت پر چڑھتے ہی اس بچے کا رونا بند ہو گیا۔ میں احتیاط سے کانپتی ٹانگوں سے رینگتی ہوئی بچے کے پاس پہنچی اور جلدی سے بچے کو جھپٹ لیا۔ بچے کے چہرے پر ایک سفید رنگ کا کپڑا دیا ہوا تھا۔ مجھے اس بچے کو دیکھنے کا تجسس ہوا، مگر میں پہلے اس جنگل سے جانا چاہتی تھی۔ ابھی میں درخت سے اتر کر نیچے آئی ہی تھی کہ اس بچے کے منہ سے پھر سے آوازیں آنے لگیں، جیسے وہ کچھ چبا رہا ہو۔ میں نے اس بچے کی آواز کو نظر انداز کیا اور بھاگتی ہوئی جنگل سے باہر آ گئی۔ ندی کے پاس بیٹھتے ہی میں نے جیسے ہی بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بچے کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں بھی بے حد خوبصورت، سرخ و سفید رنگت، پیارے پیارے چھوٹے سے ہونٹ۔ وہ بچہ اس دنیا کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پیروں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے مجھے آپ ہی بولا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھنے لگی۔ ہوش تو تب آیا جب ایک دم ہر طرف آندھی طوفان آنے لگا۔ ہوا سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے خوفزدہ ہوتی اپنے گاؤں کی طرف بھاگی۔ بچہ میرے ہاتھ میں تھا۔ بچہ لیے میں جیسے ہی گھر گئی تو وہاں میری اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی اور مجھ سے غصے سے پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں پر تھی؟ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ میری گود میں بچہ دے کر ایک دم میرے پاس آئیں اور باز پرس کرنے لگی کہ یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اماں مسلسل بولے جا رہی تھیں۔ جب میں نے بچے کے چہرے سے چادر ہٹا کر اماں کو دکھایا، اماں سے میں نے جنگل والی باتیں چھپا لی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ پھر میں نے ماں سے کہا کہ مجھے یہ بچہ باہر سے ملا ہے، میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی، مجھے راستے میں بچہ ملا ہے۔ اماں کو ہمیشہ سے بیٹے کی خواہش تھی، مگر اللہ پاک نے انہیں بیٹے کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر اماں پرجوش ہو گئی تھی۔ اماں نے بچے کو کمرے میں چھپا دیا اور بولی کہ اب سے یہ تم دونوں کا بھائی ہے اور اب کوئی کسی کو نہیں بتائے گا کہ ہمارے گھر بچہ بھی ہے۔ میں اماں کی بات مان گئی اور اس بچے سے کمرے میں جا کر کھیلنے لگی۔ میں خود بھی یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ رہے، مگر ابا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے سنتے ہی گاؤں بھر میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا بچہ گم ہوا ہے تو وہ آ کر لے جائے، مگر کوئی بھی اس بچے کو لینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بچہ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگا تھا۔ اگلے روز میرا دل برگد کے درخت کے پاس جانے کو پھر سے مچلنے لگا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکلی اور برگد کے درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کئی ہفتے ایسا ہی چلتا رہا۔ مجھے لگتا تھا لوگ تو ایسے ہی باتیں بنا رہے تھے۔ میں نے گاؤں والوں سے سنا تھا کہ اس گاؤں کی جس لڑکی کی اسی گاؤں میں شادی ہونے والی ہوتی تھی، وہ شادی سے ایک روز قبل غائب ہو جاتی تھی اور پھر اگلے روز برگد کے درخت سے لٹکی ہوئی پائی جاتی۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ برگد کا درخت کنواری لڑکیاں مانگتا ہے۔ میری سہیلی کی موت کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اب پھر سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس گاؤں میں بیاہنے کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میری حالت اب دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بخار سے برا حال تھا۔ گاؤں کی ایک عورت نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پیر بابا ہے جو کنواری لڑکیوں کو دم کر دیتا ہے، جس سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہیں اور ان پر جس جن بھوت کا سایہ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ میری اماں مجھے لیے اگلے روز ہی اس پیر بابا کے پاس پہنچ گئیں۔ پیر بابا نے میرے ہاتھ کو دیکھا تو کہنے لگا، تجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فکر اس کی جاتی ہے جو ہماری ہو، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اماں کو میری پیدائش کا وقت یاد آ گیا تو وہ اور گھبرانے لگی۔ انہیں اس عورت کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی تھی، اس نے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ لیکن مجھے پیر بابا کی بات سمجھ نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے پیر بابا کی طرف دیکھا۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب انہوں نے کہا، برگد کا پیڑ تیرے لیے ہی بنا تھا،
अब तो उस पेड़ के पास गई है, अब तेरा गांव तेरे बाद अपनी बेटियों की शादियां सुकून से कर पाएगा, और जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को घर से निकाल दो। वो आम इंसान का बच्चा नहीं है। पीर बाबा की बात सुनकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा था। मेरी अम्मा तो खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मेरी अम्मा तो हैरानगी से मुझे देखने लगी और मुझे लिए घर लौट आई। मेरी अम्मा ने मुझसे बरगद के दरख्त के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया कि मैं वहाँ अक्सर जाया करती थी और ये बच्चा भी नदी के दूसरी तरफ बने जंगल से लेकर आई हूँ। मेरी अम्मा का सांस उखड़ने लगा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मैं कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे आदत हो गई थी। मैंने तो सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं नदी के पास तो ज़रूर जाऊंगी और रात के अंधेरे में वो बच्चा उठाकर अम्मा गांव के बड़े से प्लॉट में फेंक आई जहां लोग कूड़ा फेंकने जाते थे। मैंने अम्मा को बहुत रोकना चाहा मगर उन्होंने एक ना सुनी और कहने लगी, तुमने घर में जिन के बच्चे को बना दी हुई है तो हम सबको किसी मुसीबत में मुब्तला करोगी तुम। अब अम्मा मुझ पर सख्ती करने लगी थी। मुझे मेरी बहन के साथ बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं घर में कैद होकर रह गई थी। हर वक्त इस पर निगरानी की जाती कि मैं कहीं उस पेड़ की तरफ ना चली जाऊं। कई रोज़ अम्मा के डर से मैं घर से ना निकली। अम्मा अब मुझे समझाती रहती थी कि मैं जवान और कंवारी हूँ, मुझे अब ऐसी जगहों पर जाने से एहतियात करनी चाहिए जिस पर जिन आशिक हो जाएं वो फिर कभी नहीं छोड़ते। ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होने देते और अक्सर शादी हो भी जाए तो भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसकी औलाद को कत्ल कर देते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए अम्मा की बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। ऐसा भला कहाँ मुमकिन है? जिन्नात की अपनी दुनिया है, वो अपनी ज़िंदगी में मगन है और हमारी अपनी दुनिया है, हम अपनी दुनिया में मगन हैं। उनका हम इंसानों से क्या लेना देना? मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार था जो कि किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। कभी कभी मैं बुखार की शिद्दत से बेहोश हो जाती थी और कितनी देर तक मुझे होश नहीं आता था। अब तो सब परेशान रहने लगे थे। मेरी जुड़वा बहन मेरी फिक्र में आधी हो गई थी। अम्मा अब्बा को हर बात पर एक ही बात कहती कि ये उसी बरगद के दरख्त की नहूसत है जो मेरी बेटी पर पड़ रही है। एक रोज़ अब्बा शहर गए, वापस आए तो अम्मा को एक तावीज़ दिया और बोले रात सोते वक्त इसके गले में डाल देना। इस पर अगर कोई साया हुआ तो वो टल जाएगा, फिर उसे कभी भी तंग नहीं कर सकेगा। अब्बा हर रोज़ मुझे किसी बाबा का तावीज़ ला कर देते और वो मैं गले में पहनी बेहोश हो जाती। दूसरे ही दिन अम्मा ने वो तावीज़ पहनने को बोला तो मैं तावीज़ पहनने से इनकार कर दिया और बोली कि मेरा अब दिल नहीं करता कि मैं नदी के पास जाऊं, मैं अब कभी भी उस तरफ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अम्मा मुतमईन हो गई थी। अम्मा को तसल्ली हो गई थी। मैंने भी अम्मा को दिखाने के लिए नाटक किया था और कई रोज़ दरख्त के पास नहीं गई थी और हर वक्त उस दरख्त की बुराई करती रहती थी। ये कहती थी कि मुझे उस दरख्त से खौफ महसूस होता है। दर हकीकत मुझे उसमें इंतहाई कशिश महसूस होती थी। ऐसे लगता था जैसे मुझे वहाँ पर कोई बुला रहा है, कोई अनजानी सी ताकत मुझे अपनी जानिब खींच रही है। कई रोज़ जब मैं नदी के पास न गई तो एक रात मुझे ख्वाब आया कि मैं बरगद के दरख्त के पास हूँ और उस दरख्त पर झूला डालकर झूल रही हूँ। कुछ दिन गुजरे तो मैं अपनी आदत के मुताबिक फिर से बरगद के दरख्त के पास जाने लगी। नदी के पास नन्हे नन्हे फूल उगे थे। मैं वहाँ बैठकर हर रोज़ उस बरगद के दरख्त और उस नदी से वादा करती कि मैं शादी नहीं करूँगी बल्कि रोज़ तुम दोनों से मिलने आऊँगी। मुझे ऐसा लगता था मेरी इस बात पर दरख्त झूम उठा हो, उससे पत्ते गिरने लगते थे और ऐसे लगता था जैसे वो मेरी बात पर खुशी का इजहार कर रहा हो। कोई आम इंसान मुझे ऐसे बेजुबान जानदारों से बात करता देख लेता तो यकीनन मुझे पागल समझता या मुझ पर भूत परीत का साया इस बात का यकीन कर लेता। अब मैं जवान हो चुकी थी। शहर वाले रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया था कि उसकी शादी कर दो, जवान हो गई है। मगर अब्बा अम्मा गांव के हालात की वजह से मेरी शादी नहीं करते थे। कुछ मेरी तबीयत भी अक्सर ख़राब हो जाती थी तो अम्मा का ये कहना था कि जब तक मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाती वो मेरी शादी नहीं करेंगी। बाद में ससुराल में मुझे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता था।
लेकिन कब तक हम दोनों बहनों को घर बिठा कर रखते। मेरी खाला जो शहर में रहती थी, उसने अम्मा से मेरा रिश्ता मांग लिया। लड़का भी पढ़ा लिखा था। अम्मा ने थक हार कर मेरा रिश्ता खाला के बेटे से तय कर दिया। मगर अब एक नई परेशानी ने आन घेरा था कि घर पर 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती नहीं थी, तो जहेज का सामान कहाँ से लाते। मेरी खाला ने अम्मी से कहा कि उन्हें जहेज का लालच नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मगर मेरी माँ मुझे खाली हाथ रुखसत नहीं करना चाहती थी। वो कहती थी बेटियां पैदा हों तो उनका जहेज का सामान बनने लगता है। मेरी अम्मा को भी हमारे पैदा होते ही हमारे जहेज की फिक्र लग गई थी। लेकिन हालात कुछ इस तरह के थे कि कभी भी अम्मा जहेज के लिए पैसे न जोड़ सकी। इस पर गांव भर में उड़ने वाली अफवाहें। लेकिन अब अम्मा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि खाला जल्दी शादी करना चाहती थी। अब्बा भी दिन भर फिक्रमंद रहते। अब्बा ने अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगे तो मालिक ने खुश दिली से 2 लाख का कर्जा अब्बा को दे दिया और बोले कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए तोहफा समझ लेना और उसको वापस करने की फिक्र ना करना, ये तुम्हारी बेटी के लिए तोहफा है। अब्बा खुशी से आंसू बहाते घर आए तो हम सब की जान लबों पर आ गई। हमने अब्बा से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो अब्बा ने 2 लाख रुपए निकालकर अम्मा के सामने रखे और बोले कि अपनी बहन से बोलो, जब दिल करे तब बारात ले आए। अम्मा तो इतने रुपए देकर हैरान रह गई थी। अम्मा ने अब्बा से पूछा कि कहाँ से आए हैं इतने पैसे, तो अब्बा बोले कि मेरे मालिक ने तोहफे में दिए हैं। हम सब इस इमदाद गैबी पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम सब तो अब्बा के मालिक की फराख दिली पर हैरान थे। अगले रोज़ अब्बा काम पर गए तो मुझे भी साथ ले गए ताकि मैं भी मालिक का शुक्रिया अदा कर सकूं, जो उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया। मैंने मालिक से जाकर शुक्रिया किया तो वो हैरान होने लगे और बोले कि किस बात का शुक्रिया। मैंने हैरत से अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा मुस्कुराने लगे और मालिक से बोला, जो कल आपने मेरी बेटी को 2 लाख का तोहफा दिया है उसका शुक्रिया बोल रही है। मालिक पहले तो संजीदगी से हमें देखने लगे, फिर बोले तो हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मालिक ने कहा कि कौन से 2 लाख रुपए। मेरा दिमाग खराब है जो मैं एक मुलाजिम की बेटी को 2 लाख रुपए दूंगा। अब्बा की तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब मालिक ने कहा कि कहीं तुमने मेरे पैसे चोरी तो नहीं किए। मेरा तो खौफ से वजूद कांपने लगा था। अब्बा पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अब्बा रोने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने कोई चोरी नहीं की। मालिक ने अपने ख़ास बंदे को बुलाया और बोला कि उसकी तिजोरी चेक करे, कहीं उसमें से पैसे कम तो नहीं हुए। मुलाजिम ने जैसे ही पैसे चेक किए, पैसे पूरे थे। मालिक ने अब्बा और मुझे घर से जाने को बोला। अब्बा मुझे लिए घर वापस आ गए, लेकिन ये कैसे हो सकता था? ये बात हम दोनों की समझ से बालातर थी। फिलहाल हम दोनों ने इस बात को यहीं बंद कर दिया और अब्बा ने मुझे अम्मा से कुछ भी कहने से मना कर दिया था। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। मेहंदी की रात सब मेहंदी की रस्म करने के लिए हमारे घर के सहन में इकट्ठे हुए थे। मैंने भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसकी खुशबू बहुत प्यारी और काफ़ी तेज़ थी। मैं तन्हा कमरे में बैठी अपनी मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। मैंने जैसे ही नज़र इधर उधर दौड़ाई, वहाँ कुछ नहीं था। एकदम मेरे सामने एक अजनबी सा शख्स आकर खड़ा हो गया। मेरी तो रूह कांप गई थी, क्योंकि मैं उस शख्स को नहीं जानती थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर किसी ने भी उसको मेरे साथ देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, सब मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जगह पर सहम कर रह गई थी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब उसने कहा कि मैं एक दरवेश जिन हूँ और मैं उसे बहुत प्यारी लगी थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था और अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता था और मेरी मेहंदी की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना रही थी। मैं बहुत खौफज़दा हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चीख कर बाहर आवाज़ दे दूँ, अम्मा को आवाज़ दे दूँ। मैंने कोशिश की मगर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम नदी पर जा रही हो। मैं भी अक्सर वहाँ पर जाता हूँ और अक्सर तुम्हें वहाँ पर मैंने देखा था। मैं उस बरगद के दरख्त पर रहता हूँ, मेरी रिहाइश वहीं पर है। तुम्हारी तरह मुझे भी वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी वहाँ वक्त गुजारना पसंद करता हूँ। ऊपर से उससे मेरी मेहंदी की खुशबू दीवाना बना रही थी। वो मुझे लेकर अपनी दुनिया में आ गया। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया था।
दरवेश मुझे अपनी दुनिया में ले गया। जब होश में आई तो चमकते हुए सोने के बेड पर मैं लेटी हुई थी। वहाँ पर हर चीज़ एक ख्वाब जैसी थी, जैसे जन्नत में पहुँच गई हूँ। ऐसा हमेशा परियों की कहानियों में सुना था, और जब आंख से देखा तो यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता था। मैं अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल में थी। जो कुछ भी हुआ था वो मुझे ख्वाब की माने लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये हकीकत नहीं है, बल्कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी मैं इधर उधर हैरत से देखती याद कर रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। इसी सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो ही शहजादों जैसी आन बान रखने वाला दरवेश जिन कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा कि उठकर तैयार हो जाओ, रात में हमारा निकाह है। मैं मुंह खोले उस दरवेश को देखने लगी। अभी कुछ कहती कि कमरे में परियां उड़ती हुई दाखिल हो गईं। मैं तो इतने हुस्न को देखकर हैरान थी। आखिर उस दरवेश को मैं ही क्यों चाहिए थी, जबकि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां मौजूद थीं। परियां मुस्कुराती हुई अंदर आईं और सोने चांदी का लिबास पहनाकर मुझे निकाह के लिए तैयार करने लगी। अब तो तैयार होने के बाद भी मैं उन जैसी लगने लगी थी। इतना हुस्न तो मैंने कभी नहीं देखा था। अपना चेहरा देखकर मैं एक दफ़ा हैरान होकर रह गई। मेरी अम्मा में से कोई मुझे देख लेता तो यकीनन वो भी मुझे पहचान ना पाती। तैयार होते ही मुझे बाहर लेकर जाया गया, जो एक महल बना हुआ था। इस कदर खूबसूरत महल मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। सब कुछ देखने के बाद जैसे ही मैं होश में आई तो अब मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा था। मुझे दरवेश के साथ ले जाकर बिठाया गया तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। जिन ने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़े एक कमरे में ले गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दरवेश मेरे कदमों में बैठ गया और बोला, मुझसे निकाह कर लो। इस परिस्तान को एक इंसान की सख्त ज़रूरत है। हम सब की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने हैरानगी से दरवेश की जिन की तरफ देखा, जो अब आंसुओं के साथ फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उसको समझाना चाहा कि मैं एक इंसान हूँ और वो जिन ज़्यादा है। हम दोनों निकाह कैसे कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल मामूली सी लड़की हूँ और वो जिन्नात हैं। जिन्नात तो बहुत ताकतवर होते हैं, फिर जिन्नात को मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? जिस पर उसने मुझसे वादा किया कि जैसे ही हमारा कबीला इस जालिम सरदार जिन से आज़ाद हो जाएगा, मैं उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में छोड़ आऊँगा और तुम्हारे माँ बाप को अमीर कर दूंगा। तुम्हारी दुनिया में इतना कोई भी अमीर नहीं होगा, इतना जितना तुम्हारा ख़ानदान अमीर होगा। सोने चांदी से तुम लोगों को माला माल कर दूंगा। पहले मैं सोचती रही कि मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए, मगर अब क्या हो सकता था। मैं उन्हीं लोगों की दुनिया में थी, उन लोगों के रहमो करम पर थी। अगर मैं इनकार करती तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते थे। मेरा ध्यान अपने बाप की तरफ चला गया कि मेरी गैर मौजूदगी में वो कितना परेशान हुए होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कहीं वो मुझे गलत ना समझें, वो ये ना समझें कि किसी के साथ भाग गई है। पहले तो मेरी नज़रों के सामने अब्बा का चेहरा आया, फिर मेरी बहन का, और फिर मेरी अम्मा का चेहरा मेरे सामने आया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने दरवेश को हाँ कर दी और बोला कि मैं इससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बहुत आलीशान तरीके से हमारा निकाह हुआ। खाने में इतने पकवान देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने इतना लजीज और इतना खुशबूदार पकवान आज तक नहीं देखा था। जैसे ही निकाह हुआ तो एकदम पूरे महल के ऊपर जैसे बिजली कड़की थी, तो हर तरफ जैसे शहनाइयाँ बजने लगी थीं। बिजली की कड़क पर मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अभी मैं इस खौफ से बाहर नहीं आई थी कि बहुत सी परियां मेरे पास आईं और मुझे बाजुओं से उठाकर अपने साथ उड़ाने लगीं। साथ न जाने कौन सी जुबान में गीत था जो गा रही थीं। गीत बेहद खूबसूरत आवाज़ में था। अब तो ऐसे परियों की तरह उड़ते हुए मुझे भी मज़ा आने लगा था। थोड़ी देर बाद परियां मुझे महल से बाहर ले गईं। मैं तो आंखें फाड़े अपनी जगह साकित हो गई थी। ये कौन सी दुनिया थी, इस कदर खूबसूरत दुनिया, जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा वहाँ आ गया हो। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। कहीं छोटे छोटे चश्मे बह रहे थे, कहीं बादल इतने करीब थे कि मैं उनमें से होती हुई सैर कर रही थी। ना ज़्यादा सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी, बहुत प्यारा मौसम, उस पर इतनी खूबसूरत जगह। मेरा दिल किया मैं वहाँ ही रह जाऊँ। काफ़ी देर सैर करते हुए परियों ने मुझे सीधा मेरे कमरे में पहुंचाया।
जहाँ वो दरवेश शहजादा हाथ बांधे खिड़की में से ना जाने क्या देख रहा था। मैं जैसे ही कमरे में गई, दरवेश ने मेरी तरफ मुड़ कर देखा और बोला कि खामोशी से सो जाओ, कल से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां तुम्हें समझा दी जाएंगी। अब एक तुम ही आखिरी जरिया हो इस कबीले को सरदार जिन से आज़ादी दिलवाने का। मैं दरवेश की बात को समझते हुए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन ये क्या, वो बिस्तर कम और फूलों का गुलदस्ता ज्यादा मालूम हो रहा था। इतना नरमो मुलायम बिस्तर, पर मैं लेटते ही नींद की वादियों में गुम हो गई थी। वहां पर नींद ऐसी थी जैसे न जाने कितने सालों से मैं सो रही थी। मुझे सोए अभी कुछ वक्त ही गुजरा था। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत बड़े जिन के साथ लड़ रही हूँ। हर तरफ आग ही आग है। मैं बहुत परेशान हूँ। हर तरफ फौज की भरमार है। उसी वक्त ख्वाब में मैंने देखा कि मैं सब्ज लंबा फ्रॉक पहने, सर पर ताज सजाए, बड़ी सी लाल सीट वाली कुर्सी पर बैठी हूँ और मेरे पास मुलाजिम खड़े मुझे पंखा झल रहे हैं। कोई मुझे बहुत लजीज शरबत बनाकर दे रहा है, कोई मुझे फल खिला रहा है और मेरे सामने परियों का जुनून एक हजूम लगा हुआ था जो तालियां बजा रहा था, मेरा नाम ऊंचा ऊंचा पुकार रहा था और सब हमारी नई सरदारनी पुकार रहे थे। फिर एकदम सब गायब हो गया और मैं फूलों के बाग में खड़ी गोल गोल घूम रही थी और मेरे पीछे सर पर ताज सजाए मेरा दरवेश शोहर खड़ा हो जाता है और मेरे हाथों को पकड़कर घुटनों के बल बैठकर मेरे हाथों पर अपना सर टिका देता है। और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम उठकर बैठी तो बुखलाई हुई थी। उठकर देखा तो मेरा शौहर अभी भी इसी तरह खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरे उठने पर मुड़ा तो मुझे हैरत से देखने लगा। मुझे उसकी बात पर बहुत हैरत हुई जब उसने कहा, तुम इंसान कितना सोते हो, पिछले 1 साल से तुम मुसलसल सो रही हो, ऐसे कैसे हमारे कबीले को आज़ाद करवाओगी। अपने शौहर की बात पर तो मेरी आंखें उबल पड़ी थीं। वो मेरे अंदाज पे मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हारी दुनिया के वक्त में और हमारी दुनिया के वक्त में बहुत फ़र्क है। तुम्हारी दुनिया का एक लम्हा हमारे यहाँ कई साल के बराबर है। मेरा शौहर बोला कि अब अगर मैं उठ गई हूँ तो जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ। मैंने कपड़े तब्दील किए तो परियां मुझे तैयार करने आ गईं और बहुत प्यारा सा तैयार करके चली गईं। मैं जिस वक्त नाश्ते की टेबल पर बैठी तो परियां उड़ती हुई मेरे आगे लजीज लवाजमात रखने लगीं। मैंने नाश्ता किया और अपने शौहर के साथ बाहर फिरने चली गई। मेरे शौहर ने पूरा कोहकाफ का कबीला घुमाने के बाद मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे एक ऐसी जगह लेकर गया जिससे 1000 किलोमीटर दूर से ही आग की तपिश महसूस होने लगी थी। चूँकि मैं एक इंसान थी तभी मुझे आग की तपिश बहुत पास से महसूस हो रही थी। मैंने दरवेश को बताया तो उसने अपनी जेब में से एक बड़ा सा शॉपरनुमा हड्डी निकाल कर मुझे पकड़ाया, जिसको मैंने अपने ऊपर पहन लिया। अब मुझे बिल्कुल भी तपिश महसूस नहीं हो रही थी। मेरा शौहर मुझे उस जगह ले गया जहाँ हर तरफ आग ही आग थी और बहुत से जिन और परियां एक बड़े से जिन के आगे पीछे मुरझाए चेहरों के साथ काम कर रहे थे। वो जिन अपने मुलाजमीन पर तशद्दुद करता और उनको पकड़कर आग में फेंक देता। मैं बहुत गौर और खौफ से उस सब मंजर को देख रही थी जब मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ दी। मैं चौंक कर एकदम शौहर को देखने लगी। मैंने अपने शौहर से बोला कि ऐसा ही जिन बचपन से मेरे ख्वाब में आता था और अब जब मैं सोई हुई थी तो मैंने इसके साथ खुद की लड़ाई देखी। मैं इसके साथ बहुत लड़ रही हूँ और हर तरफ आग ही आग है। जिसे सुनकर मेरा शौहर मुस्कुराने लगा। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी थी। तभी उसने पूछा कि मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो उसने मेरा हाथ थामा और वापसी का रास्ता लिया। एक बहुत ही प्यारे झोंपड़ी नुमा घर में मुझे ले जाया गया। वहाँ पर हर तरफ एक ख्वाबनाक माहौल बनाया गया था। मेरे शौहर ने बोला, आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर कल से तुम्हें अपनी फौज तैयार करनी है। मेरे शौहर ने मुझे एक लड़की की कहानी सुनाई। कहते हैं एक बहुत मासूम सी प्यारी सी लड़की पैदा हुई अस्पताल में। मैं उस अस्पताल के बाहर से गुजर रहा था तो मुझे उस अस्पताल में से जिन साथी की खुशबू आई। मैं पहले तो मुझे बहुत हैरत हुई, फिर मैं जल्दी से अस्पताल के अंदर चला गया और जिस वार्ड से जिन साथी की खुशबू आ रही थी उस तरफ मुड़ गया। वहाँ एक प्यारी सी बच्ची थी, बहुत खूबसूरत परियों की मानिंद। मैंने एक अम्मा का रूप लिया और उस बच्ची का हाथ थामकर उसकी अम्मा से कहा कि ये उस दुनिया की नहीं है और उसके बड़े होने का इंतज़ार करते हुए वापस आ गया। फिर जब वो बड़ी हुई तो मैंने कई बार उसे अपने पास बुलाया
کبھی درخت پر چڑھ کر، کبھی پانی میں بہہ کر، کبھی تنہائی میں تو کبھی ہجوم میں وہ میرے پاس بیٹھ کر بہت سکون محسوس کرتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کی طاقت جاننے کے لیے اس کو ایک بچے کے پیچھے بھگایا، اور اس کی بہادری تو دیکھو، وہ بغیر ڈرے اس بچے کے پاس پہنچ گئی، اور نہ صرف وہاں پہنچی، اس بچے کو اتار کر گھر بھی لے گئی۔ وہ بچہ بھی کوئی نہیں تھا، وہ میں خود ہی تھا، اور اس کو یہ ظاہر کیا کہ وہ بچہ کوئی وہاں پھینک گیا تھا۔ پھر جس روز وہ بچی ایک پیر بابا کے پاس گئی تو میں نے پیر بابا کی شکل اختیار کر لی اور اس کو بولا کہ یہ بچہ اس دنیا کا نہیں ہے، اور پھر وہ جوان ہوتی گئی اور ایک روز اس کی شادی طے ہو گئی، لیکن وہ تو اپنے پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے لیے بن گئی تھی، پھر وہ وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اسی لیے میں اسے چھپ کر یہاں سے لے آیا۔ میں بہت غور سے اپنے شوہر کی کہانی سن رہی تھی، اور پھر ایک دم جیسے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کہانی تو جیسے کہیں سنی ہوئی تھی یا کہیں دیکھی ہوئی تھی۔ میں نے دماغ پر زور ڈالا تو اس کہانی میں خود کو وہ بچی پایا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ برگد کا پیڑ کون تھا، تو میرے شوہر بولا کہ برگد کے پیڑ پر میں رہا کرتا تھا اور اس ندی کے ذریعے میں اپنی دنیا میں واپس آتا تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کی لڑکیوں کا اس برگد کے پیڑ سے کیا لینا دینا تھا، اور میری سہیلی کا اس سے لٹک کر مر جانا کیا تھا۔ جب اس بات کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کیا تو وہ بولے کہ میری سہیلی کو میرے شوہر نے نہیں بلکہ اسی سردار نے مارا تھا جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، پرستان واسیوں کی خاطر، اور وہ تمام لڑکیاں بھی اسی سردار کے قبضے میں ہیں۔ اب مجھے اس سردار پر غصہ آنے لگا تھا۔ میرا شوہر مجھے بات بتا رہا تھا، ایک دم میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے جب اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور کہنے لگے، اب تم بالکل تیار ہو جنگ کے لیے، کیونکہ تمہارے اندر جن زادیوں والی تمام طاقتیں آ گئی ہیں۔ اس پر میرا انسان ہونا سردار کو فنا کر دے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ان کو کیسے پتا چلا، تو انہوں نے بولا کہ جب میں غصہ کر رہی تھی تب میری آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کسی کے کام تو آؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کل تک سونے نہ دیا، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا بھی خمار نہیں تھا۔ اگلے روز میرے شوہر نے میرے ساتھ لاکھوں جنوں کی فوج تیار کی۔ پریوں نے میری نظر اتاری اور مجھے لے کر سردار کی نگری کے پاس چھوڑ دیا۔ میں ابھی ایک قدم سردار کی نگری میں رکھا ہی تھا کہ ایک دم زمین دہل گئی اور ہر چیز الٹ پلٹ ہونے لگی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف تباہی مچ گئی تھی۔ بہت سے سردار کے سپاہی جو بہت ہی بدصورت تھے ہم سے مقابلہ کرنے کو آئے۔ میرے اور سردار کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور آخر میں بس میں اور سردار بچا تھا۔ مجھے ایک پل کو خود محسوس ہوا اور پھر میں نے پرستان کی تمام پری ذاتیوں کو دیکھا جو میرے آس پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف آگ برس رہی تھی۔ بہت سے ملازم ابھی بھی میرے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ میری اور سردار کی لڑائی بہت زبردست ہوئی تھی۔ بہت سی زرہیں مجھے لگیں اور بہت سی میں نے سردار کو لگائیں۔ کافی دیر لڑائی کے بعد اب باری تھی آخری وار کی۔ میں نے سردار کے پاؤں کے پاس جا کر اس کے پیر میں ابا کا لایا ہوا تعویذ باندھ دیا جو جلدی میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میرا تعویذ باندھتے ہی سردار جن خاک ہو گیا اور راکھ ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ تمام پریاں، لڑکیاں اور جن آزاد ہو چکے تھے۔ پرستان کا وہ حصہ جو سردار کی زد میں تھا آج پھر سے آزاد ہو گیا تھا۔ انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود اس میں کچھ نہیں بچا تھا۔ ہر طرف آگ بجھ گئی تھی۔ پھول کھلنا شروع ہوئے تو سب پریاں ادھر ادھر گھومنے لگی تھیں۔ میرے جسم پر جو زخم آئے تھے ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ پریاں جلدی سے مجھے اٹھا کر جن نگری لے گئیں جہاں میرا شوہر میری فتح کے بعد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں خوشی سے ان کے پاس گئی تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور میرے خواب کی طرح میرے ہاتھوں پر سر رکھ دیا۔ سب پریاں مجھے اڑاتی جگہ جگہ پھر رہی تھی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا، ہر طرف خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر گزری تو مجھے پھر سے تیار کیا گیا اور مجھے لیے سب ایک بڑی سی کرسی پر بٹھا دیا جہاں سب تالیوں سے میرا استقبال کر رہے تھے۔ مجھ پر پھول برسائے گئے، میرے سر پر سردارنی کا تاج پہنایا گیا۔ ان سب کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو میں گھر واپس چلی گئی جہاں میرے شوہر پریشان حالت میں کھڑے تھے۔
मैं उन्हें देखकर काफ़ी परेशान हुई और उनसे परेशानी की वजह पूछने लगी, जिस पर उन्होंने भराई नज़रों से मेरी तरफ देखा और एक बड़ा सा थैला मुझे पकड़ा दिया, जिसको खोलने के बाद मेरी आंखें चुंधिया गई थीं, क्योंकि उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी था। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा, जो मेरी तरफ ही देख रहा था, और कुछ परियों को बुलाकर बोला कि मुझे मेरी नगरी यानी दुनिया में छोड़ आया जाए। वादे के मुताबिक मुझे वापस दुनिया में भेजा जा रहा था। मेरा वजूद कांपने लगा। ये बात सच थी कि मेरा दिल लग चुका था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि मैं इनकी दुनिया से नहीं थी, ना मैं वहां रह सकती थी। मैं रोते हुए अपनी दुनिया में वापस आ गई। सब हैरान थे कि मैं वापस कैसे आई। सब ने मुझसे पूछा कि इतने साल मैं कहाँ थी, जिस पर मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। अब तो हर माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करता था। गांव पर से बला टल गई थी। सब लोग खुशी खुशी बरगद के दरख्त के पास जाते, नदी में नहाते, लेकिन इस सब में वाहिद मैं थी जो अफसुर्दा थी। अम्मा मेरा रिश्ता देखने लगी तो मेरा दिल बेचैन होने लग जाता। मैं सारा सारा दिन रोती रहती और अपने जिन शौहर को याद करती रहती। एक रोज़ अम्मा ने मेरा निकाह तय कर दिया, लेकिन मुझे एक और फिक्र थी कि मेरा निकाह तो हुआ है पहले से ही। मैंने अपनी अम्मा को बताया कि मेरा निकाह हुआ है और मैं एक जिन की बीवी हूँ, तो मेरी अम्मा मुझ पर बरस पड़ी और बोली कि ये खबर किसी को मत देना, तुम्हें हम लोगों का ज़रा ख्याल नहीं आया, कैसे तुमने ये सब कर दिया। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं बहुत मजबूर थी। लड़का निकाह के लिए जब आया तो मेरी हैरत से आंखें खुल गईं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सब कुछ मेरी सोच के उलट हो रहा था, मगर मेरे दिल को एक तरह से करार आ गया था। मैंने खामोशी से अम्मा की बात मान ली थी और उन्हें इस बात का इजहार नहीं होने दिया था कि ये वही जिन है। जब निकाह हो गया तो मैं वापस अपनी दुनिया में आ गई। मुझे बोला कि परिस्तान अपनी सरदारनी के बगैर अधूरा था, तभी वो मुझे वापस ले आए। और भी काफ़ी वक्त के बाद मैंने अम्मा को हकीकत बताई। ये सुनकर अम्मा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। कितना वक्त मुझसे नाराज़ रही थी। मैं जब भी उनसे मिलने के लिए आती तो वो मुझसे बात नहीं करती थीं। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती थी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मेरा शौहर मुझे तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन तुम्हारी अम्मा तुमसे राज़ी हो जाएंगी। अब ये हकीकत घर में सब लोगों को पता चल गई थी कि मैं एक जिन की बीवी हूँ। सब लोगों ने ही मुझ पर बहुत गुस्सा किया था, मुझसे बास पुरस की थी, मगर अब क्या हो सकता था। वक्त गुजर चुका था, फिर रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो गया। अम्मा भी मुझसे राज़ी हो गईं और मुझसे अच्छे तरीके से मिलने लगी। हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। मेरा जब अम्मा से मिलने को दिल करता, मेरा शौहर मुझे मेरी दुनिया में छोड़ जाता और फिर कुछ दिनों बाद खुद ही वापस ले जाता। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी थी। किसी का भला करो तो आपको भी हर शय से नवाजा जाता है जिसकी आपको चाह हो। अगर किसी काम का इरादा अच्छाई के साथ करो तो वो काम हमेशा पाए तकमील तक पहुंचता है। बुराई की हमेशा हार होती है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अपनी कोशिश यही करो कि दूसरों के साथ अच्छाई करो। बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। अच्छाई करने वाला कभी भी मुश्किल का शिकार नहीं होता। उसे वक्ती तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर ये मुश्किलात उसकी आजमाइश के लिए आती हैं कि वो अपनी नीयत में किस हद तक सच्चा और खरा है। और जब वो अपनी आजमाइश में पूरा उतर आता है तो उसका रब उसे फिर उस हद तक नवाज देता है कि वो खुद भी हैरत ज़दा रह जाता है। ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई यूं भी नवाजा जाता है।